Hello class 8, welcome to your maths class. Students, we are doing chapter number 4, direct and inverse variation. So, till now we have completed our direct variation. I hope all of you would have been familiar with what is direct variation. आपने अच्छे से सबने डायरेक्ट वेरिएशन को समझ लिया होगा और उसके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए होंगे. बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनवर्स वेरिएशन. So, before starting inverse variation, let me share its learning outcome. Why we are doing this topic? After watching today's video, you will be able to solve real life problems involving inverse variation. बेटा, आज का टॉपिक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका इनवर्स वेरिएशन का रियल लाइफ में कहां पे यूजेस है, कहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो. तो आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन टाटा क्लासेज वीडियो in which inverse variation was explained, and the same was explained our video number 1, which was sent on day 1 of that means when this chapter was introduced. Let me again recap what is inverse variation. So let's have a quick recap. What is inverse variation? If two quantities are related in such a way that increase in one quantity results in a corresponding decrease in the other and vice versa, such variation is called inverse variation. बेटा, दो क्वांटिटीज आपस में ऐसे रिलेट हो कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो, then there is a corresponding decrease in the other quantity. There was an example of speed and time. As the speed was increasing, the time to cover the same distance was decreasing. That was an example of inverse variation. Now moving on to the mathematical formula for inverse variation, it is xy is equal to k. तो हमने mathematically इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज करना है वो हमारे पास है xy is equal to k. Now let's move on to worksheet 2, question number 1. So question number 1 is, in the following table A and B vary inversely. Fill the missing values. हमें दिया क्या गया है कि A और B they are in inverse variation and we have to find the missing values in the table. तो यहाँ पे एक हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट इट बी x एंड दिस बी y. जो क्वांटिटीज हमारी मिसिंग है उनको हमने x और y ले लिया. बेटा, यहाँ पे दिया क्या गया था, A and B vary inversely. Since A and B vary inversely, ये दोनों इनवर्स वेरिएशन में है, तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हुआ इसका, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. दैट मींस ए बी इज इक्वल टू के. इन फर्स्ट केस A is 7 and B is 8. Now substituting the values, 7 into 8 is equal to k. Beta, 7 8s are 56. So our k comes out to be 56. Now we are going to use this value of k in other columns. In case 2, A is equal to given to be x and B is 4. And our formula is for inverse variation, AB is equal to k. So x into 4 is equal to 56. So x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है बेटा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा. 56 by 4 कटिंग करिए. So our x comes out to be 14. Now our third case is A is 28, B is y. So AB is equal to k. Substituting the values, 28 into y and k is 56. यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा. फिर से कटिंग करिए. 28 1 are 28, 28 2 are 56. So our missing values comes out to be 14 and 2. So you people will also attempt question number 1. First part I have done for you. Second and third part you will do it yourself. Now moving on to question number 2. Our question number 2 is,
The science teacher asked the students of class 8 to make a project report on pollution. When 10 students work on it, the work gets finished in 3 days. How many students are required so that work finishes in 2 days? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हम उसकी वर्कशीट कर रहे हैं, लेकिन व्हाई इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। उन्होंने कहा है कि एक साइंस प्रोजेक्ट को अगर 3 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उसके 10 स्टूडेंट्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, देन द वर्क इज फिनिश्ड इन 3 डेज। तो काम 3 डेज में फिनिश हो रहा है। अगर सेम वर्क हमने फिनिश करना है 2 डेज में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड? बेटा अगर हमें नंबर ऑफ डेज कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमें इसको डिक्रीज करना है, ये 3 डेज से 2 डेज हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कब होगा कम? जब उसी प्रोजेक्ट पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसको हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ज्यादा स्टूडेंट्स एक काम को करेंगे तो ऑब्वियसली वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो जितने स्टूडेंट्स हमें चाहिए, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। जितने स्टूडेंट्स अब हमें चाहिए उस काम को 2 डेज में फिनिश करने के लिए, लेट इट बी एक्स। अब यहाँ पे रिलेशन किस किस के बीच में, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में है और एक नंबर ऑफ डेज में, स्टूडेंट्स कितने डेज में काम को फिनिश कर रहे हैं। तो हमारे पास टेबल में क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज। अब फर्स्ट केस में क्या है, 10 students are finishing the work in 3 days, but we want to finish the same work in 2 days, so we have assumed the number of students to be x. Now what we have to write, मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन में भी पहले एक्सप्लेन किया था, हमें टाइप ऑफ वेरिएशन मेंशन करनी है। So it is a case of inverse variation. अब इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये मैंने आपको पहले भी अभी एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू के मीन्स 10 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस में ये एक्स है और ये वाई है, और सेकेंड केस में ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। तो वैल्यूज पुट कर दी, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। अब जब एक्स फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है बेटा, तो इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 इंटू 3 ओवर 2। अब कटिंग करिए, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, नाउ 5 3 जार 15। जब हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज? देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हमारे पास कितने हो गए, 15। आपको एंड में ये स्टेटमेंट लिखनी है देयरफॉर करके, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। आपको देखिए सबसे पहले जो जो स्टेप है फिर से रिपीट करूं, डायरेक्ट में बताया, यहाँ पे फिर से बता रही हूँ। शुरू में जो चीज अननोन क्वांटिटी है उसको लेट करना है, फिर टेबल फॉर्मेशन है सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप है टाइप ऑफ वेरिएशन बतानी है कौन सी है, देन टू राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। आफ्टर सॉल्विंग यू हैव टू राइट द आंसर। ठीक है, कई स्टूडेंट्स यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन हमें बताना है कि हमने क्या फाइंड आउट किया है। ऑलवेज अटेम्प्ट योर पेपर इन अ प्रॉपर वे, कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, टू एक्सप्लेन इट मोर लेट मी गो टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक तो आपको पता लग गया होगा जो आज की हमारी लर्निंग आउटकम थी कि हमारी डे टू डे लाइफ में इनवर्स वेरिएशन का यूज कैसे होगा। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी टेक एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम वर्कशीट। So question 3 is, running at an average speed of 40 km per hour, a bus completes a journey in 4.5 hours. How much time will the return journey takes if the speed is increased to 45 km/h? बेटा देखिए, अब इनवर्स वेरिएशन है क्या डायरेक्ट, ये हमें देखना है इसमें से। ठीक है, स्पीड 40 km/h है, तो हमारे पास टाइम उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 4.5 hour लग रहा है। Now the speed is increased, obviously जब हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम विल बी डिक्रीज्ड, कम टाइम लगेगा अगर स्पीड ज्यादा है। ठीक है, with increase when the speed is increased time is decreased, therefore it is a case of inverse variation। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने के, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मच टाइम, क्या फाइंड आउट करना है हमें,
टाइम, तो हम किससे लेट करेंगे, लेट टाइम टेकन बी x आवर्स, लेट टाइम टेकन बी x आवर्स। अब हमारे पास किस किस के बीच में रिलेशन है बेटा, एक स्पीड के बीच में और एक टाइम के बीच में। तो हमारे पास टेबल में क्या क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप टाइम और स्पीड के बीच में है, तो हमारे पास टेबल आ गया टाइम इन आवर्स एंड स्पीड इन किलोमीटर। ओके, तो फर्स्ट केस में टाइम था 4.5 आवर्स, यहाँ पे देखिए 4.5 को जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो 9/2 आ गया, और व्हाट वाज स्पीड, स्पीड वाज 40 किलोमीटर, तो वी हैव रिटन 40 हियर। नाउ in second case we have to find a time, so we have taken it as x and the speed is given to be 45 km per hour, so let it be 45 लिख दिया हमने यहाँ पे। now what हमें उस next step में क्या लिखना होता है, which type of variation it is, so it is a case of inverse variation, तो अब हमने type of variation भी लिख दी। after that we have to apply the mathematical formula, so our mathematical formula for the inverse variation is xy is equal to k। बेटा फर्स्ट केस में x 9/2 है और y 40 है, तो 9/2 into 40 इज इक्वल टू सेकेंड केस में x into 45। अब यहाँ पे वी हैव टू फाइंड x, 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इस साइड जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा, सो वी विल गेट 9 into 40 upon 2 into 45। नाउ कटिंग 2 1s are 2, 20 आ गया यहाँ पे, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 4 आफ्टर कटिंग हमारे पास टाइम कितना आ गया, x की वैल्यू 4, therefore time taken is equal to 4 hours। so today we have done question number 1 2 and 3, so you people will do question number 4 5 and 6 as homework, so your homework questions are question number 4 5 and 6। I hope after watching today's video you will be able to do the questions related to inverse variation or real life situations also। आपको समझ आ गया होगा जो हमारी आज की लर्निंग आउटकम थी कि हम इनवर्स वेरिएशन को कैसे अपने डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो you people will do now question number 4 5 and 6 from the worksheet number 2। we will continue from question number 7 tomorrow। thank you beta।